Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we started a series on essay writing. So we are talking from very elementary things so that you understand how to write a good essay. Now in essay, the most important thing is sentence. So we must know how to write the sentence. Now when we speak or write, we use words. We generally use these words in a group. And a group of words like this, which makes complete sense, is called a sentence. So what is a sentence? It is group of words. And when it makes a sense, it becomes sentence. So if we have to write small sentences, that means our choice of words should be good. And they should be grouped in such a fashion that it conveys the literal meaning as we want to convey. For that, I will recommend you to read any chapter on sentence from a grammar book. I have recommended a good grammar book, that is Grammar by Wren and Martin. In that chapter number 1 is on sentence. Read that chapter. That will help you the understanding what is the sentence and how these sentences are formed and how they can be effective sentences. Now sentences are categorized into 4 parts. One is those which make statement or assertions, as Humpty Dumpty sat on a wall. Second, those which ask question, where do you live? Third is those which express commands, requests. And fourth is those which express strong feelings. How cold the night is. So that means we must know what type of sentence we are going to form. Out of these 4 kinds, we should be very clear. Sometimes the writer is not aware what type of sentence he or she is forming, and that's why it is not able to give him or her command over the language. So if we are making one particular type of sentence, we must understand what kind of sentence we are forming. So group of sentences will make a paragraph. So in essay writing, I have already given you some tips. What are the right way of writing an essay? That was lesson number 1. And now this is lesson number 2. Some of you I have observed, they are very keen. They give some topics. Sir, give us some topics. The topics that is meant for group discussions can be used for essay writing also. There is no need to have variety of topics. The paper is of your checking of knowledge about a language. So more important is how you are able to convey your feeling in a sentence and how these sentences are grouped together so that you secure good marks in essay writing. So your effort is not on the topics. Your effort should be on improving your language. And for that, you have to read a good grammar book, understand what is the essential of the sentence, how a sentence is written, how feelings in a sentence are transferred from one person to another. So writing is an art. Conveying the feeling is another art. And conveying it rightly is the superlative form of your expression. So some people are very, very expressive and some people are less expressive. We have to become expressive so that people are able to understand your language in the same sense as you wish to convey. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. ऐसे राइटिंग को लेके हमने एक सीरीज शुरू की, उसमें फर्स्ट लेसन मैंने आपको पहले दिया. आज हम ये सेकंड लेसन कवर कर रहे हैं. सेकंड लेसन के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऐसे राइटिंग में सबसे एसेंशियल चीज क्या है. सेंटेंस फॉर्मेशन. दी सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सबसे पहले आपके पास क्या है? अल्फाबेट.
अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड, और वर्ड को इकट्ठा करें तो क्या बनता है? सेंटेंस। और हम सेंटेंस किसी को कब कहते हैं? जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई सेंस कन्वे करता है, कोई बात कन्वे करता है, किसी चीज को कन्वे करता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। पहला सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बात कहना चाह रहे हैं। दूसरा है जिसमें हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तीसरा है जिसमें हम कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और चौथा है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है किस काइंड का हम सेंटेंस बना रहे हैं। कई लोग मिक्सचर ऑफ सेंटेंस बनाते हैं, उससे कुछ भी कन्वे नहीं हो पाता है। मीन्स अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो अलग तरह से सेंटेंस बनेगा, हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो अलग तरह से सेंटेंस बनेगा, हम कोई बात असर्टिवली कहना चाह रहे हैं वो अलग ढंग से सेंटेंस बनेगा, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अलग ढंग से सेंटेंस बनेगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस की क्या एसेंशियल्स हैं, ये सब ग्रामर बुक्स में कवर्ड है। मैंने आपको एक अच्छी ग्रामर बुक रिकमेंड की है, उसको आप देख लीजिए। उसके फर्स्ट चैप्टर ही है सेंटेंस क्या है। तो यदि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया तो काफी हद तक आपका एसे सही चला जाएगा। एसे के अंदर वो आपकी लैंग्वेज पे कमांड देख रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट पे कमांड देख रहे हैं। काफी लोग इस चीजों में उलझे रहते हैं कि जो टॉपिक पूछा है उस पे मैं इनपुट्स दे दूं। वो इतना एसेंशियल नहीं है टॉपिक पे इनपुट। इंपॉर्टेंट है आपने किस तरह से अपनी फीलिंग को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, क्या आप एक्सप्रेसिव हैं, क्या आप अपनी बात को इफेक्टिवली दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा पाते हैं। ये ऐसे का निचोड़ है। तो कई लोग इसको नहीं समझते हैं, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड, ऑर्नामेंटल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरे को अर्थ ही नहीं समझ आता उसको। तो ऐसी भाषा डिसरप्टिव भाषा होती है। हमने अपनी नॉलेज नहीं डिस्प्ले करनी है ऐसे के अंदर, हमने अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है। जो एग्जामिनर वो ये देख रहा है कि इस आदमी की कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, क्या ये अपनी बात को सिंपल से सिंपल शब्दों में दूसरों तक पहुंचा पाता है, समझा पाता है तो उनसे काम ले पाता है। क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर हैं या किसी रैंक पे हैं तो आप डेली कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से आपको डील करना है, अपने स्टाफ से आपको डील करना है, अपने सुपीरियर से आपको डील करना है। ये आपको आना चाहिए। आपको डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करना है, ये आपको आना चाहिए। इस चीज की चेकिंग हो रही है। आपके सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर नहीं चेक हो रही, उसके लिए अलग पेपर है। तो हर पेपर का एक उद्देश्य है, उसको हमें समझना है, उसके अनुसार हमें तैयारी करनी है। तो जब आप ये ग्रामर बुक पढ़ेंगे तो इससे आपको पता लगेगा। टॉपिक्स आप जो जीडी के टॉपिक्स है उन्हीं को टॉपिक ऐसे का मान के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान आते हैं। टॉपिक की टेंशन मत लो, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।